Hi friends, today we have, as promised, Mr. Ravi Jain with us, All India Rank 9 in UPSC Civil Service Examination 2019. Although the marks breakup are still not out, but hopefully he's the one who would have got, if not the highest, at least one of the top marks in psychology. So please welcome Ravi. Ravi, thank you so much for joining. Thank you, Ankit, for hosting me. I could reach out to psychology students most through an online platform through you than anyone else. So thanks a lot. No problem. So we'll keep it really crisp, Ravi. Crisp in the sense that I know aspirants are preparing, and there are a lot of strategy videos already. So we'll just go question by question. We have already I already have a list of questions which I have compiled through my own inquisitiveness, and also some of the comments on the YouTube video which I posted as a teaser to your appearance. So tell me, how are you feeling, Ravi? How does it feel to be a single digit rank holder in IAS examinations, and that too through an option like psychology, which is, some people have a notion that it does not score very well. Honestly, I never expected single digit rank. This was my fourth attempt, and I actually hoped and prayed that somehow I get into the list so that like this the cycle of this exam giving and taking stops somewhere around. So that way, I was never hopeful. And about the feeling, I'm very relieved that today I did not have to appear for this prelims examination. And seeing the review of the paper of those who have appeared, it appears that this was tougher than the previous attempt. So in that sense, I'm very much relieved. And I'm actually feeling fortunate that I got through this round because apart from the hard work that everyone who reaches the stage of interview or appears for the mains gives in, you need a lot of amount of luck and fortune with it. Yeah, that's true. I mean, हमें नहीं पता होता है कितने लोगों की दुआएं होती हैं पीछे, और how does success transform. So for everyone's for the friends who are watching, I have got repeated requests कि थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखें, and that's how we are going to keep it. And as Ravi was saying, ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन प्रीलिम्स हुआ है, that means उसके नाइट में. So that's why Ravi was saying कि आज का पेपर देख के. तो अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए रवि, मतलब like how was your preparation journey, when did you start, how did you even think of starting, and how did you land up, which attempt was this one, और फिर overall journey क्या रही आपकी civil service examination? 2012 में मैंने ग्रेजुएशन किया था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज कंसीडरिंग ज्योग्राफी एंड फिजिक्स ऑप्शन 2012 में दो ऑप्शनल देने होते थे, ठीक है. तो उस समय मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया था अलॉन्ग विथ माय जॉब्स, बट फिर मेरे को लगा कि मैं ना तो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा, ना मैं सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाऊंगा. Then I left. I think I completed 10-15% of the syllabus on my own of geography option, and then I left, started reading novels, enjoying my work. फिर 2015 में एक पॉइंट आया कि नहीं, अब मतलब ये जॉब प्राइवेट जॉब से आई वाज नॉट वेरी enjoying the work, so I thought कि यही एक टाइम है जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ. तो 2015 में मैंने जॉब क्विट कर दिया था एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज होल हार्टेडली. और आपकी तो जॉब ये मेरा दिल्ली में 2015 के, आपकी जॉब दिल्ली गुड़गांव में आई वाज वर्किंग. I graduated from Netaji Subhas Institute of Technology, which is also in Delhi, and then वहीं से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में, गुड़गांव में बेस्ड था मैं, तो वहीं से कर रहा. And this would be your which attempt, Ravi? 2019 कौन सा attempt था? Fourth attempt था. My previous experience was I could not qualify 2016 का prelims. Then 17, 18, 19
this was 19th attempt. I appeared for the interview all 3 times, and पिछले 2 attempts में I could not get through in the list. So, in psychology, since this is a discussion on psychology, I scored 283 marks in 2017 exam and 276 in 2018 exam, and this time I don't know how much I scored. Not bad scores, मतलब 280 के around कुछ भी is really good. तो coming to psychology, how did you choose psychology? आप बता रहे कि शुरू में आपने geography और physics you opted for, and then you moved to psychology. What made you do that? Actually, भाई 2012 से 15 के टाइम पे जैसा मैंने बोला कि I started reading novels, कुछ थोड़े से ऐसे psychological perspective और वैसे वाले novels थे, and for some reasons मैंने थोड़े से mental disorder और ये सब के बारे में पढ़ना शुरू किया, and coincidentally उस समय Crash Course करके एक YouTube channel है जिसपे Crash Course Psychology John Green post करते वो लेते थे, तो मतलब I remember Wednesday को हर Wednesday को उनकी एक वीडियो आती थी for 40 weeks लगातार, तो मैं उसको उस समय फॉलो करना शुरू किया था, and it is not very much academic भी नहीं है, बहुत laymanish भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मिक्स है सब कुछ का, तो मुझे अच्छा लगा था, तो देन आई थॉट कि मतलब मैं तो एक बार ही साइकोलॉजी का मास्टर्स भी कहीं कंसिडर करने लगा था, फिर मेरे को लगा कि जब सिविल सर्विसेज करना है तो ये मतलब अच्छा मौका है फॉर स्टडीइंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सो एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, बट आउट ऑफ कोर इंटरेस्ट मैंने ये लिया था। जब मैं ले रहा था तब भी मुझे एडवाइस करा गया था इसके अगेंस्ट, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा इन डिमांड ऑप्शनल है नहीं और सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा ही है, मार्क्स भी ऐसा लोग बोलते हैं ज़्यादा आते नहीं हैं, तो वैसे नहीं था, बट तो मेरा तो 100% यही रीज़न था कि मुझे इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वुड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। And do you really think that background matters while choosing psychology option? Like somebody who already has a MPhil in psychology, or somebody who's coming from, let's say, mining engineering background or electrical engineering background. Do you think both of these people are on the same level when it comes to preparing for UPSC psychology? I think those who have done, graduation, post-graduation, or MPhil in psychology would obviously have edge over the, the base. I mean, the starting point, because they will have some plenty of knowledge from those who are coming from background like me, who never had studied psychology at any level. I mean, in some engineering college, they teach the behavioral, classical conditioning and operant conditioning. But for me, that was also, I was never taught in the college, behavioral part also. So I think those who do post-graduation and graduation, they would have an extra edge. But over the time, the subject is very interesting and it's very logical. One can, catch up with them. Would not be a difficult. I know engineers who get selected by choosing law optional, commerce optional also. So I think it would matter in the starting, but with hard work, one can overcome that factor. And did ever a thought like cross your mind कि psychology is not that scoring, anthropology के लोग ज़्यादा select हो रहे हैं, या फिर physics लेना चाहिए, उसमें score 320 में आराम से आ जाता है अगर ढंग से prepare करें, तो ये सब कभी thought आया था मन में? नहीं, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट के लिए लेता था तो लिया था मैंने, तो मुझे वैसे कोई रिग्रेट नहीं था ऑप्शन लेके। हाँ, स्कोर 285 276 आ रहा था, और जब मैं सोच रहा था कि मैंने अच्छी तैयारी की है तो नहीं आ पा रहे थे, एंड आई सी पीपल फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी गेटिंग, मतलब बहुत ही ईज से 300 प्लस आते हैं, लेकिन वो फिर हमारा सैम्पल साइज भी गलत हो जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में इन 10x टाइम स्टूडेंट साइकोलॉजी से बैठते हैं। आई थिंक साइकोलॉजी में जितना मुझे पता है 200-250 बच्चे ही मेंस लिखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी 3000 के करीब बच्चे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा लोग लिख रहे हैं तो थोड़ा सा 300 प्लस के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेंगे भी, दैट इज़ लॉजिकल। हमारे में मतलब आई रिमेंबर लास्ट टाइम अनुराज के 333 थे, आई हैव नॉट हर्ड एनीवन गेटिंग मोर देन 300, एंड उससे पहले आई थिंक आपके 317 थे, उस अटेम्प्ट में भी मैंने नहीं सुना था किसी के 300 प्लस आए। तो वो 1 in 250 उस अटेम्प्ट में मान लेते हैं, तो मनीष कुमार के आए थे 309 उस मेरे अटेम्प्ट में। ठीक है, मानते हैं कि 2 ही मिनिमम है,
300 में 2 मिनिमम आ रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी के 3000 लेंगे तो उस प्रोपोर्शन में 20 तो आएंगे, 20 हमें दिखते हैं ज़्यादा। तो वैसे, और मेरा मानना है लो स्कोरिंग इसलिए हो जाता है कि हम मतलब from my experience I scored 276 and 283 which I considered कि मतलब एक अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए वो एवरेज मार्क्स है। तो वो एवरेज मार्क्स इसलिए आते कि मैं वो ही घिसी-पिटी बातें लिखता था जो बुक में लिखी है, मतलब अपने से इम्प्रोवाइज नहीं करता था। एंड सूनर और लेटर आई रियलाइज्ड थ्रू योर हेल्प आल्सो कि मतलब कुछ डिफरेंट लिखना होगा, जो सब लिख रहे हैं फिर वो एवरेज मार्क्स ही गिरेगा। मतलब लाइक अनुराग से मेरी बात हुई थी, ही सेड कि हमारा गोल यही है कि हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स 1 मार्क एक्स्ट्रा लेना है। एंड वो आ सकता है जो भी हम लिखते हैं उसके पार्ट बियॉन्ड हमें कुछ एडिशनल चीजें लिखनी, गुड एग्जांपल्स, गुड इलस्ट्रेशन या गुड कोई भी स्टडी जो और कोई नहीं लिख रहा। तो मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हो बिकॉज आई मीन दैट्स व्हाट आई आल्सो टेल स्टूडेंट्स कि मेंस देते ही 300 लोग हैं साइकोलॉजी से, so definitely the number of people that you see in the final list will be less, and the same applies to the fact कि the number of people scoring very high marks in psychology will be less. But ऐसा कुछ नहीं है कि UPSC differentiates between any option. In fact, they do scaling, which is like trying to bring students at par, right? वो तो ठीक है क्योंकि आई बिलीव कि मतलब दैट इज द मतलब एग्जाम का ही सिस्टम का ही वैसा है, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस और वो कंपेयर हो नहीं सकता है। तो यूपीएससी ट्राइज देयर बेस्ट, जो भी साइंटिफिक मेथड है स्केलिंग का वो यूज करते हैं। आई डोंट थिंक उनको कोई बायस है कि यही ऑप्शनल के बच्चों को लेना है। और वो ऐसा होता है कि हम से अगर साइकोलॉजी का अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तो फिर 200 की जगह 400 लेंगे, 400 के बाद 800 लेंगे, एंड फिर वो इतने सारे हो जाएंगे तो अपने से रिजल्ट उसका अच्छा होने लगेगा। तो आई थिंक कास्केड होता जाता है। साइकोलॉजी का खराब भी इसलिए हो गया होगा, पहले काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन होता था, फिर वो रिजल्ट धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता गया तो और भी लोग वापस हटने गए, दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव हो गए। जैसे एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक रिसेंटली पॉपुलर हुआ है। तो अभी ओवरऑल ठीक है, अब मतलब ऑपरेशन डिटेल्स पे आते हैं। मतलब ओवरऑल कितना टाइम लगता है? मान लीजिए अगर कोई अभी सोच रहा है कि 2021 में उसको अटेम्प्ट देना है, तो ओवरऑल उसको कितने मंथ्स लगेंगे मतलब फ्रॉम स्क्रैच साइकोलॉजी ऑप्शन शुरू करने में और खत्म करने में? देखिए मुझे लगता है कि साइकोलॉजी में एक सबसे बड़ा चैलेंज है इज द सोर्स, क्योंकि जो सिलेबस है उसके लिए एक बुक रिसोर्स नहीं है। बाकी ऑप्शंस में ये सब इजीली अवेलेबल होता है, चाहे सोशियोलॉजी ले ले, एंथ्रोपोलॉजी ले ले, तो वो एक सोर्स मिलता है तो वो जल्दी हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना होता है। या तो आप कोचिंग ले ले तो आपको मटेरियल मिल जाता है, नहीं तो फिर बुक्स मतलब एक बुक में नहीं मिलता। जैसे बैरन में कुछ टॉपिक्स अच्छे दे रखे हैं, कुछ मॉर्गन एंड किंग में अच्छे दे रखे हैं, कुछ सिसरेली में अच्छे दे रखे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है स्विचिंग, मतलब कौन से बुक से कौन सा टॉपिक पढ़ना। अदरवाइज जैसे पेपर 2 के लिए हमारे पास स्मारक सुइन है, उसके अलावा कुछ भी कोई नहीं पढ़ता, तो वो इजी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पेपर 1 थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर अच्छे से कोई अपना नोट्स बनाता है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग करता है विथ माई काइंड ऑफ स्टडीज। आई विल से कि 2 से 3 महीने में आराम से बढ़िया से बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए, नोट्स बनाते हुए कि एग्जाम टाइम पे नोट्स बनाने हैं और उसको पढ़ना है, तो 2 से 3 महीने में आई बिलीव कि पेपर 1 हो जाएगा। और पेपर 2 1 महीने में तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही बुक पढ़नी है और पेपर 1 अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है तो पेपर 2 फिर रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। एंड पेपर 2 में मोस्टली इम्प्रोवाइज ही करना है, अपार्ट फ्रॉम थ्योरीज आपको अपने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सोचना है, तो दैट वेज प्रिपरेशन का बुक को लेके थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो कुल मिला के मतलब 4.5 से 5 महीना बफर टाइम लगा के लगेगा। एंड दिस यू आर सेइंग जीएस के प्रिपरेशन के साथ साथ, राइट? हाँ, लेकिन थोड़ा सा फोकस ऑप्शन में ज्यादा रहे उस फेज में, तब 5 महीने में हो जाएगा। जो रेगुलर करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, मे बी 1 ऑफ 2 ऑफ टॉपिक एक दिन में जीएस के भी पढ़ना साथ साथ, तो आई बिलीव हो सकता है। मतलब फिर पेपर 2 तो रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा, पेपर 1 में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो भी वही रीजन है क्योंकि सोर्स एक नहीं। तो सोर्सेस पे आते हैं। तो मतलब इफ यू हैड टू लिस्ट डाउन सोर्सेस, व्हाट विल बी द मेन सोर्सेस लाइक व्हिच विल कवर लाइक 80% ऑफ द सिलेबस, और बाकी के 20% हाउ डज अ स्टूडेंट कवर? मतलब अगर उसके पास कोचिंग के नोट्स नहीं है या फिर ये पेपर 2 के लिए तो इट्स वेरी आउटराइट कि
मतलब स्मारक स्वयं पढ़ना है वो है, और किसी को कोई टॉपिक में लगता है कि उसमें कम दे रखा है क्योंकि ये बुक काफ़ी पहले लिखी गई है एंड ये उनके खुद के स्मारक स्वयं सर के नोट्स थे ये, तो उन्होंने लिखा है दिस इज़ वेरी गुड बुक। उसके अलावा भी अगर आपको, क्योंकि सबको यही पढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा एडिशनल तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरनेट से पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए एंड उसी में बुक्स भी मिलते हैं कई सारे, वहाँ से भी लिखा जा सकता है, मतलब अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए, सप्लीमेंट कर लीजिए। जैसे टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन आईटी, वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब जैसे नए नए इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ब्लू व्हेल वाला था, वो इश्यूज तो ऐसे काफी इश्यूज मतलब जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उससे रिलेट करके हम मतलब उसको अपडेट कर सकते हैं रादर। तो वो है पेपर वन में सोर्स, एक्चुअली मैंने कोचिंग कर रखी थी तो मेरा मतलब गो टू मटेरियल वही होता था, उसमें जो नहीं दिया रहता था वो नहीं समझ में आता, तो वो मैं बुक से पढ़ता था। बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव रेड बैरन और मॉर्गन एंड किंग भी मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, और एक थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सिसरेली भी बुक से पढ़ा था। तो मेरे को कंक्रीट सोर्स बताना जो जिन्होंने कोचिंग नहीं ले रखा है उसके लिए डिफिकल्ट होगा। आई थिंक आप ज़्यादा बेटर बता सकते क्योंकि आपने शायद जब अपने प्रिपरेशन करा था तो आपने अपने ओन में किया था, तो बुक लिस्ट के बारे में आई बिलीव यू कैन सजेस्ट बेटर देन मी एंड आई थिंक यू शुड, क्योंकि मेरे से भी कई लोग पूछते हैं तो मुझे बताना डिफिकल्ट भी होता है। नहीं मतलब हाँ, मतलब मैं बता सकता हूँ, बट इट्स ऑलवेज गुड फॉर एस्पिरेंट्स टू गिव गेट मोर एंड मोर डाइवर्स ओपिनियंस। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आपने कोचिंग लिया है, आई थिंक यू आर मेंशनिंग अबाउट मुकुल पाठक सर इन दिल्ली, राइट? यस उनसे आपने यस कोचिंग यस लिया, यस यस। तो उनके नोट्स काफी फ्रीली अवेलेबल रहते हैं बच्चों के पास, एंड आई नेवर कंसल्टेड देम, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं। तो अगर वो है तो उसमें आप प्रिंट आउट, जो कोचिंग करते हैं वो तो डेफिनेटली उनसे करते हैं, और जो नहीं करते वो ऑन एंड ऑफ, जो जैसे कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते बुक में डायरेक्टली, जैसे आई थिंक दास एंड पास मॉडल कोई भी बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है एंड ऑन एंड ऑफ यूपीएससी हर 2 साल में या लगातार भी पूछ लेती है उस टॉपिक पे, तो वो उनके नोट से मिल जाते हैं। तो मतलब जो नहीं कर रहे तैयारी वो उनके नोट्स को रेफर करने के लिए रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंस आई हैव नॉट डन, बट अगर कोई मेरे से पूछता है तो आई से कि यूपीएससी का सिलेबस साथ में रखना चाहिए, जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक्स जो भी बुक में आपको इन तीनों बुक से, बैरन, मॉर्गन एंड किंग और सिसरेली से, जिस बुक में आपको लगता है कि सही दे रखा है जिससे सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं उस बुक से पढ़ लेना चाहिए। ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा मतलब टॉपिक्स ढूंढने में, बट हाँ ये इसके साथ स्ट्रगल है, बट इससे एडवांटेज ये होगा कि आपके आंसर्स यूनिक होंगे जो कि मतलब जो कोचिंग करता है उससे डिफरेंट होंगे, तो वो वहाँ पे आपको शायद एज मिल सकता है अगर आपने अच्छी मेहनत की है। तो मतलब दिस इज व्हाट आई आल्सो वांट टू से कि आप सिलेबस वाइज टॉपिक ले लें जो भी सुन रहे हैं, मतलब, और उसके बाद या तो आप हार्ड कॉपी में बना रहे हो तो एक 2-3 कॉपीज लग जाएंगी कभी कभी आपको, या फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हैं वर्ड में या गूगल डॉक में या एवरनोट में कहीं पे भी या वन नोट में, तो आप सारे सिलेबस के टॉपिक्स देख लें। अगर आप इन सारे education.in पे जाओगे तो वहाँ पे नोट्स ऐसे ही दिया हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे, सिलेबस लिखे और देखिए सिलेबस का ईच टॉपिक में के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है, हर बुक या हर सोर्स से, वट एवर यू आर स्टडिंग, एंड दैट्स हाउ यूल, दैट्स द पॉइंट व्हिच रवि इज ट्राइंग टू मेक। सो तो रवि, मतलब लेकिन फिर भी अगर मैं ब्रॉड टर्म्स में सोर्सेज के बारे में बात करूँ तो आप यही बोल रहे हैं कि पहले तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स, नहीं भी ले रहे हैं तो अगर मार्केट में अवेलेबल है वो ले लें, मतलब मुकुल पाठक सर के नोट। दूसरा है बैरन, मॉर्गन एंड किंग और सिसरेली, राइट? और इनके अलावा पेपर 2 के लिए सिंगल पॉइंट सोर्सेस स्मारक स्वयं, राइट? स्मारक स्वयं एंड यू कैन इनरिच द कंटेंट विद इंटरनेट मटेरियल। उसके अलावा अगर आप सिलेबस में कोई टॉपिक अगर आपको दिखता है तो आप उसको ऐड, मतलब ऑनलाइन से देख के ऐड कर लीजिए अगर वो अच्छे से कवर्ड नहीं है। आपने कोई इस बार आईटी का कुछ सवाल आया था, जो मैंने कोशिश इस बार मतलब आपसे बात करके भी और अनुराग से बात करके भी यही समझ में आया था कि मतलब एनरिच करना है आंसर्स को। तो जैसे आईटी का सवाल आया था, मैंने पहले भी बोला था, उसमें ब्लू व्हेल चैलेंज और इन सबको ऐड करने की कोशिश की। फिर एक करिकुलम का सवाल आया था कि आई थिंक कुछ करिकुलम से रिलेटेड था, तो काफ़ी टाइम हो गया क्वेश्चन भी, तो उसमें मैंने दिल्ली का जो करिकुलम ऐड किया था, हैप्पीनेस करिकुलम एंड एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, तो उसके बारे में मेंशन किया था। तो पेपर 2 में स्पेशली मेरे एक मतलब पेपर 2 में 135 एंड 145 मार्क्स रहे, तो मैंने मतलब यही ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लिखते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक के
के आंसर से ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाए। तो दोज हु हैव जॉइंड मिडवे या फिर ऐसा मतलब जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, अभी रवि के मार्क्स आउट नहीं हुए, तो व्हाटएवर मार्क्स ही इज रेफरिंग टू इज फ्रॉम हिज प्रीवियस अटेम्प्ट्स। यस। तो या तो एक बात बताइए, जब इतने वेरिड सोर्स हैं तो दैट मींस यू विल डेफिनेटली हैव मेड योर ओन नोट्स, राइट? आपने बनाए थे अपने नोट्स? ओके। तो उसमें हाँ, तो उसके रिवीजन में जैसे आपने बताया 4.5-5 महीने करीब बफर टाइम मिला के पूरा प्रिपरेशन होता है, रिवीजन का क्या फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए और और कैसे करना चाहिए? देखिए रिवीजन तो मतलब पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। मैं अपना ही बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने कोचिंग ली थी, उसके साथ साथ मैं डेली पढ़ता था जो भी मतलब क्लास में पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद मेरा प्री नहीं निकला था, तो मैंने किया था कि वो जो अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला उससे आई थिंक उस समय प्री अगस्त में हुआ था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर मैंने 4 महीने में ऑप्शनल अपना पूरा खत्म किया। उसके सारे क्रिस्प नोट्स बना दिए जो मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया, और ऑल द 28 टॉपिक्स के नोट्स मैंने शेयर किए वहाँ पे। तो वो मैंने बना लिया था अराउंड, मतलब मैक्सिमम पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा था तो उसको 10-15-20 पेज में था, बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स 10-10 पेज में थे। तो अभी का जो फॉर्मेट हो गया है यूपीएससी का कि जिसमें वो ऑप्शनल के पहले 5 दिन छुट्टी देती है, तो वो में मुझे बहुत ही हैंडी था। मतलब मेरे हिसाब से अगर वो नोट्स मेरे नहीं होते तो मैं कभी भी रिवाइज नहीं कर पाता सब कुछ। तो मैंने नोट्स बनाए थे, उस टाइम पे नोट्स बनाए थे, और रिवीजन जब करना होता था तो मैं मोस्टली, क्योंकि मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से ऐसे साइकिल में ही था, प्री मेंस इंटरव्यू, तो प्री के टाइम पे ऑप्शन नहीं पढ़ सकता था, जब प्री और मेंस चल रहा होता तो मैं ऑप्शन पढ़ता था, तो उसी समय रिवाइज करता था। तो जो भी बुक पढ़ता था, मेन सोर्स या नोट्स पढ़ा है वो, जैसे पेपर 2 के लिए स्मार्ट एक्सप्लेन, तो वो मैं उस टाइम पे पढ़ता था, तो अपने शॉर्ट नोट्स थे उसी में अगर कुछ नया मिलता था तो इनरिच कर लेता था। एंड फिर फाइनली एग्जाम से पहले एक रीडिंग के बाद फिर मैं बस वही पढ़ता था जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे। तो आपके नोट्स अभी आपके ब्लॉग पे अवेलेबल है, राइट? मतलब सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो इसलिए, तो मैं आपसे वो यूआरएल लेके एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, एंड वो लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, so that people are, they are not finding something in my notes, they can go to yours. तो ओवरऑल जब आंसर लिखते हैं तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि साइकोलॉजी के आंसर में जीएस का नहीं लिखना है, या you have to write it in a psychological language. How did you approach your overall answer writing for psychology? मैं भी यही मानता था, एटलीस्ट फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो मैंने मेंस लिखा था, मैं भी यही टेक्स्ट बुक की जो भी मतलब या तो नोट्स में या बुक में जैसे लैंग्वेज में लिखा होता वैसे ही लिखता था। बट सीइंग अनुराग स्कोर्स लास्ट टाइम 333 लाया था, मैंने उसका आंसर्स जो उसने शेयर किया था वही पढ़ा था, तो मैंने देखा था वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही मतलब ले मैनिश लैंग्वेज में लिखता था, लेकिन हाँ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सही होते थे, उसके जो भी वर्ड्स वो लिखता था, जो भी साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखते था सही होते थे, तो उसने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, उसके इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे होते थे। तो वो जब मैं अपने आंसर से कंपेयर कर रहा था तो मुझे यही लैक्यूना दिखी कि मैं एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता, तो वो उसकी ज़रूरत है। तो मैं यही मानता हूँ कि आंसर्स तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखे, जो कि जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है वो उसको रेलेवेंट फाइंड करे और एकदम सिंपली उसको समझ में आ जाए विदाउट मच एफर्ट। और जीएस के भी चीज़ें लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली रेलेवेंट है, कंटेक्स्ट में है। तो मैं जैसे अभी ब्लू व्हेल और ये जो दिल्ली का लिकुरन की बात कर रहा था, तो वो सब ऑब्वियसली जीएस में ही हम पढ़ते हैं, हम ऐसे साइकोलॉजी के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन वो हाँ क्वेश्चन में था और कंटेक्स्ट में याद आ गया तो मैंने वो लिख दिया। So how does one remember all these examples and all these research studies and all all these small nuances which are to be put in the answer? How does one get into the groove of producing it during the examination hall? रिसर्च स्टडीज तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी में हमें पास में लिख देना चाहिए था। जैसे समझ लीजिए परसेप्चुअल डिफेंस पे सवाल आता है और कई बार रिसर्च स्टडीज उस पर पूछ लिया जाता है, तो जब हम परसेप्चुअल डिफेंस की टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो भी रिसर्च स्टडीज है रेलेवेंट वही पे लिखते हैं। तो जब जब हमें आंसर्स लिखना होगा से दे आस्क और दे डोंट आस्क, तब भी हम वो रिसर्च स्टडीज लिखे एंड विच विल ऑब्वियसली फेच मार्क्स। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में क्या है कि हम हर आई बिलीव कि हर एक टॉपिक पे एग्जाम्पल्स बनाना डिफिकल्ट होगा, तो जितने में भी हम पढ़ते समय रियलाइज करते, चाहे समझ रहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे और वो
टॉपिक आया, हमें लग रहा है कि हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमें वहाँ पे मतलब अपने नोट्स में वहाँ पे जाके लिख देना चाहिए। और दूसरा है कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम सोच ले कि अगर वहाँ पे सवाल आएगा तो हम ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ऐसे लगभग मेरे हिसाब से 50% कवरेज हो जाता है। और फिर हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो एग्जाम में हमारा मतलब आई बिलीव कि हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है और हमें पता रहता है कि हमें लिखना है, तो उस समय एग्जाम्पल्स याद आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इस बार एक सवाल आया था कि पेपर 2 में था अबाउट टीम स्पिरिट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो मैं फुटबॉल देखता हूँ, सॉकर देखता हूँ, तो थोड़ा मेरे दिमाग में था कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था कि अर्जेंटीना इन स्पाइट ऑफ हैविंग players, world class player like Messi and Di Maria are not able to win even the small intracontinental trophies. But on other hand, Germany, which is works like a team plays in a team spirit, तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता, वर्ल्ड कप और यूरो कप सब तरह के टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वो जीतते हैं। तो मैंने वो एग्जांपल वहाँ पे कोट किया था। तो ऐसे एग्जांपल्स याद आ जाते हैं। मतलब वन हैज टू क्रिटिकली एनालाइज जब भी ऐसी चीजें पढ़े कि हाँ हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो मतलब फिर एग्जाम में याद आ जाता है। मतलब वो टेस्ट सीरीज एंड कहीं पे भी प्रैक्टिस करके भी मतलब करा जा सकता है। Which means that while studying, one has to recall examples and note them down in your notes. And while doing your answer writing practice, you have to apply them so that it becomes effortless during the exam. Did I summarize it well? Yeah, in a way, yes. Okay. And did you have a preference of writing answers in point wise or paragraph wise? Sorry, your voice broke down. Can you repeat the question? आपकी कोई preference थी क्या? Did you have a preference of writing the answers in point wise या para wise? प्रेफरेंस तो ऐसे ही रखता था कि पॉइंट वाइज ही लिखना है। वो एक तो स्ट्रक्चर करना आसान हो जाता था एंड चेकर को भी आसान रहता है, वर्ड्स में भी थोड़ा सा कम लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखो एंड यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स। बट समवेयर जैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, और मतलब मैं अपने आप को फोर्स नहीं करता था, वो जो भी ऑर्गेनिकली आता था ना, तो क्योंकि काफी क्वेश्चंस लिख चुके होते हैं, तीसरा अटेम्प्ट भी था और वैसे पहले भी मैं यही करता था, ऑर्गेनिकली जो आए वो करूंगा। हाँ, प्रेफरेंस की बात करेंगे तो प्रेफरेंस रहता था कि पॉइंट्स में लिखो, लेकिन कई सारे क्वेश्चन में मुझे लगता था डिमांड ऐसा है या मैं लिख नहीं पाऊंगा इसको पॉइंट्स में एंड पैराग्राफ वुड जस्टिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बेटर, तो मैं उसको पैराग्राफ। लेकिन टू क्वांटिफाई आई से 70% ऑफ द क्वेश्चन so मिनिमम ही पॉइंट वाइज ही होते हैं। Okay, that's helpful. So, and did you stick to your intro, body, conclusion approach, or like did you have intro and conclusion in all your answers, or did you skip it for some of them? Intro नहीं, I used to write intro and conclusion in almost all the answers. Conclusion लिखना थोड़ा सा साइकोलॉजी में डिफिकल्ट हो जाता है अगर थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करता था, जो भी डिमांड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी पूछ रहा है, तो उसको कंक्लूड ऐसे 2 लाइन में सिग्निफिकेंस से कर देता था। और इंट्रो में जनरली मैं अगर थ्योरी पूछ रहा है तो थ्योरी के बारे में लिखता था, कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल लिख देता था। एंड हाँ, अगर वो करंट से कुछ रिलेट करके लिखा जा सकता है तो वो कोशिश करता था, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है साइकोलॉजी में, एटलीस्ट पेपर 1 में। तो पेपर 1 में तो मैं मोस्टली डेफिनेशन लिखता था, एग्जांपल लिख देता। जैसे इंटेलिजेंस का सवाल है, तो इंटेलिजेंस का जो भी वेस्टलर या जिसका भी डेफिनेशन याद किया मैंने, वो मैंने क्या किया था, हाँ, डेफिनेशंस की भी एक लिस्ट बना ली थी, तो सब एक पेपर में लिख दिया था। तो जिससे मुझे खुद को लगता था कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो मुझे ये सब टेक्निक्स करने पड़े थे कि जिससे मुझे डेफिनेशंस आए। तो ब्रॉडली जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, परसेप्शन, फिर आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, प्रेजुडिस, जो भी ऐसे टॉपिक्स थे बड़े बड़े, सबका मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन ऑलमोस्ट याद कर लिया था। थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाते थे, लेकिन जो भी साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे वेस्टलर ने अगर इंटेलिजेंस का डेफिनेशन दिया है या फिर अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी का दिया है, तो वो सब मैं याद करके वहाँ पे लिखता था। एंड उसके बाद इस अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की थी कि हर एक इंट्रो मतलब डेफिनेशन के बाद वो एग्जाम्पल लिख दूंगा। अगर पर्सनालिटी की बात कर रहे हो तो 1-2 पर्सनालिटी के एग्जाम्पल्स लिख दूंगा, जो भी क्वेश्चन से रेलेवेंट हो तो एग्जाम्पल लिख दूंगा, जैसे बुक में भी होता है। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है जहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स उठाने, उसमें सिंपल तरीके से कैसे एग्जाम्पल्स लिखा जाता है वो वहाँ से उठा सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में आंसर लिखने का तरीके में कोई डिफरेंस होता है क्या? मतलब बहुत लोगों में मिथ है कि ब्रॉडली स्पीकिंग आई विल से नॉट, मतलब
मेन हमारा गोल तो यही होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको एड्रेस करना। तो अगर फ्रॉम 50,000 फीट अबव अगर हम देखें तो उसमें यही होता है कि एक इंट्रो होगा, एक बॉडी होगा, एक कंक्लूजन होगा। एंड इंट्रो शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन, कंक्लूजन भी कोशिश करो कि इंट्रो में जो लिखा है या बॉडी में जो लिखा है उसको कंक्लूड कर रहे हैं। एंड बॉडी में मेरे हिसाब से जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो लिखना है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, अगर आंसर राइटिंग में डिफरेंस अगर होना चाहिए तो शायद पेपर 2 में ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एंड पेपर 1 में भी मैंने इस बार कोशिश की थी कि डायग्राम्स बना कर आऊँ। तो डायग्राम स्टैंडर्ड जो बुक में दिया, जैसे अगर परसेप्शन का सवाल आए तो वो जो एक इमेज होती है जिसमें वो चेंज होता रहता है फिगर ग्राउंड में, जैसे फेस एंड फेस, तो वो बना देता था, या नेक कर करके क्यूब होता था आई थिंक, वो बना देता था। तो मतलब ये मैंने इस बार किया था कि ये करूँगा इस बार। फिर एक हरमन ग्रिड होता है आई थिंक परसेप्शन के लिए, तो वो भी इस बार बना के आया था किसी सवाल में, जो परसेप्शन का सवाल था। मतलब डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, स्पेशली द स्टैंडर्ड डायग्राम्स, राइट? स्टैंडर्ड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जैसे स्मारक स्वेन में काफी दे रखा है, उससे हम देख के भी वो भी बना सकते हैं, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। मतलब काफी इलस्ट्रेटिव होते हैं उनके डायग्राम्स। तो सिमिलर अगर हम ऐसा कुछ पेपर 1 के लिए भी इम्प्रोवाइज कर ले, पहले से सोच ले, तो वो भी बनाया जा सकता है। ओके, so Ravi, मतलब 10, 15 or 20 marks, three type of questions are there. Is there any difference, like मतलब ऐसा है कि 10 मार्क में इंट्रो नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन 20 मार्कर्स में थोड़ा एक्सप्लेन करके, या फिर 10 मार्कर्स में डाइवर्सिटी को टच करो वर्सेस 20 मार्कर्स में डेप्थ में जाओ, ऐसा कुछ है क्या? और 10 मार्कर में ऑलरेडी मेरे को ये लगता है ना कि सवाल में ही बहुत कुछ पूछा रह जाता है, और वो हमारे पास इतना पड़ा हुआ रहता है, हमारे पास कंटेंट तो ऑलमोस्ट होता ही है। तो मेन होता है स्पेस मैनेजमेंट। तो इंट्रो उसका ना बहुत ही छोटा सा लिख दो, जैसे मतलब अब मेरा तो गो टू यही होता था कि इंट्रो में डेफिनेशन लिख दो इन केस दे आस्क, ठीक है। इन केस दे डोंट आस्क तो मैं अगर कोई थ्योरी पूछी तो थ्योरी के बारे में लिख देता कि वो थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है या क्या उसका रेलेवेंस रहा है। तो ऐसे मेरा गो टू रहता था। बट 10-20 मार्क्स में यही है कि जैसे 20 मार्क्स में 3 पेज के अराउंड यू हैव टू फिल, इनफैक्ट 4 पेज, 15 मार्क्स में 3 पेज होता है। तो 4 पेज होता है तो उसमें हमें पता रहता है कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट हम 4 पेज में नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा ना जो चीज़ पूछा उससे पहले की बात भी बता देता हूँ, थोड़ा जो बात की बात भी बता देता हूँ। जैसे अगर कोई थ्योरी पूछी है तो वो थ्योरी कैसे आया, क्यों, मतलब समझ लीजिए। और जो मोटिवेशन का मैस्लो के बाद कौन सा होता था, इससे हर्सबर्ग, तो हर्सबर्ग ही होता था इम्प्रूवमेंट ऑफ मैस्लो। या तो हर्सबर्ग के बारे में थोड़ा सा बताना है तो मैस्लो के बारे में थोड़ा सा बता दिया, एंड देन हर्सबर्ग शुरू कर दिया। एंड हर्सबर्ग का अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है, थोड़ा सा 20 मार्कर है, तो हर्सबर्ग का सिग्निफिकेंस भी बता दे कि कैसे वो मैस्लो को इम्प्रूव करा। तो मतलब ऐसे मिक्स करना, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी 10 मार्कर में नहीं होगी। अगर हर्सबर्ग पूछे तो हर्सबर्ग ही लिखना। Correct, correct. Yeah, I think you answered it beautifully, 10, 15, 20 वाला. तो ओवरऑल अगर मतलब ये तो एग्जाम में है, राइट? मतलब वी कैन अप्लाई दीज अप्रोचेस इन एग्जाम, बट बिफोर दैट इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू improve upon his answers while he's practicing them, so when should they start answer writing and how frequently, like after completing the syllabus या फिर पहले चैप्टर से ही, जब जैसे ही मतलब पहला चैप्टर खत्म किया वैसे ही आंसर राइटिंग चालू कर दें? मेरे हिसाब से तो जैसे जीएस में क्या होता है ना कि हमें जनरल आंसर लिखने होते हैं। तो जो जीएस 1 में है वो ऐसा नहीं है कि हम बस अगर जीएस 1 का पूछा है तो जोग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी इन पेपर इज इन पेपर 3 या पॉलिटी इज इन पेपर 2, तो हम पॉलिटिकल या मतलब इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स नहीं लिखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ जीएस आंसर्स लिखने के पहले थोड़ा सा एक थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, एटलीस्ट एक कर्सरी रीडिंग तो होनी चाहिए हर टॉपिक्स में। बट मुझे लगता है साइकोलॉजी में क्या है कि जैसे लर्निंग पढ़ रहे हैं तो लर्निंग के कुछ टॉपिक्स ऑब्वियसली रिलेटेड होंगे दूसरे टॉपिक से, इंटेलिजेंस से भी हो सकता है, क्रिएटिविटी से भी हो सकता है, और भी टॉपिक्स हो सकता है। लेकिन ब्रॉडली कुछ टॉपिक्स है, जैसे अब क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट ही अपने से। तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करा जा सकता है। इनफैक्ट मैं भी मतलब जब भी मतलब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं चैप्टर वाइज थोड़े बहुत आंसर्स लिख ही लेता था। मतलब एक चैप्टर के 5-6 आंसर्स लिख लेता था बाद में, या प्रीवियस ईयर देख लेता था और उसको स्ट्रक्चर कर लेता था एटलीस्ट कि ये चीज लिख सकता हूँ।
So after writing answers, how does one evaluate? Because for small answer, I think there's no test series. No, आपने दो answer लिखा है, so there won't be any test series. So how does one self assess? And second part of that is, if they have a peer group, does it help? And if it does, how to make it more helpful? See, like I joined the coaching, so while a chapter was completed, I used to write and get it evaluated by the teacher. So वो बहुत मतलब उतना वो नहीं हो पाता था क्योंकि सर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता था, कई लोग मेरे जैसे होते थे उनके पास इवैल्यूएट करवाने के लिए। लेकिन बीच में जसमीत सिंह सोंधी थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ाया था वहाँ पे, जो रैंक 3 लेकर आए थे सर। तो वो ही वाज वेरी मतलब हेल्पफुल, और वो चाहते भी थे कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। तो ऑल्दो ही यूज्ड टू टीच स्टैटिस्टिक्स, एंड उन्होंने उस साल आईएएस जब निकाला था तो पंजाबी लिटरेचर से पेपर दिया था, बट ही Yeah, I remember. मतलब ही वाज सो मच मोटिवेटेड कि वो हमारे साइकोलॉजी के भी आंसर चेक कर लेते थे, Polymath. मतलब अच्छा फीडबैक देते थे। तो मैं जब भी वो क्लास लेने आते थे, मैं उनसे साइकोलॉजी के आंसर्स भी चेक कराता था, तो वो मेरे को एज मिल गया था। अब से किसी के पास मतलब किसी ने क्लासेस नहीं ली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यू कैन फॉर्म ग्रुप्स, तो उसमें से एक दूसरे से इवैल्यूएट करा सकते हैं। ये हेल्पफुल भी होता है क्योंकि हर का अपना सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है, लिखने का भी तरीका अलग होता है, तो सबसे लर्निंग हो सकती है। मतलब मुझे तो पर्सनली जीएस में इस अटेम्प्ट में लगता है कि मैंने अपने फ्रेंड से ज़्यादा सीखा है, उनके स्टाइल्स को अच्छे अच्छे जो भी एस्पेक्ट्स है उसको मतलब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी इस अटेम्प्ट में। साइकोलॉजी में ज़्यादा मिले नहीं मुझे जिनके साथ मैं कर पाऊँ, तो मैं अपने से ही करता था थ्रू मतलब इवैल्यूएट करके। तो अगर एक लेवल के पास मतलब पहुंच जाता है विथ say attempts या experience, तो one can assess one own answer भी। लेकिन उसके पहले तो peer evaluation भी help करेगा, बस peer सब एक लेवल के होने चाहिए। मतलब someone मतलब with more knowledge than you won't help you, और less knowledge also will not help you, moderately same होनी चाहिए, तो मतलब मेरे हिसाब से काफी हेल्पफुल होता है। Almost same level of preparation पे होना चाहिए, वरना frequency match नहीं करता है। तो I think students, you can leverage these days, Telegram groups हैं आजकल, तो WhatsApp groups हैं, तो you can leverage all this. मतलब मेरा भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें से आप एक सब ग्रुप बना लो 4-5 लोगों के जो कि सिमिलर सोच के हैं, एंड यू कैन पेयर ग्रुप से अच्छा कुछ नहीं होता मेरे नॉलेज में तो। But I would, since you are pointing about the Telegram group, I'll say कि अगर ग्रुप बनता है तो उसको फिर ना तो साइकोलॉजी का डिस्कशन हो तो उसको साइकोलॉजी का ही रहने देना, उसमें जीएस डिस्कस मत करना, वो फिर डाइल्यूट हो जाता है, फिर साइकोलॉजी भी डिस्कस नहीं होता। एंड वी सी अभी जो एक टेलीग्राम का पॉपुलर ग्रुप था वो स्पैम हो चुका है बिल्कुल। तो अब मेरे हिसाब से कोई ग्रुप ही नहीं बचा जो बहुत ही स्केल पे। नहीं, एक मेरा ग्रुप है जो मैं उधर से ही बना, जब वो स्पैम होना शुरू हुआ था तो आई क्रिएटेड माय ओन थिंग, एंड देयर आर लाइक मोर देन 450 people. I don't think you yeah. Not a member, I think. Yeah, so I've But kept it yeah, strictly for psychology people. So yeah, I delete all the posts which are non-psychology related. Anyway, so in terms of self-assessment, if I as an aspirant write some answers, how do I self-assess? Let's say I don't have access to peers or teachers, especially in these lockdown situations. How do I self-assess? Like, what are the criteria of my assessment? फर्स्ट कि जब हम आंसर लिखेंगे तो एज्यूम कि कोई भी मतलब विदाउट रेफरिंग टू द बुक लिखेगा, तो जब वो लिखेगा तो मे बी ही कैन फर्स्ट तो स्ट्रक्चर ही देखना है कि जो क्वेश्चन में डिमांड था। एक तो होता है कि 7 मिनट्स में हम एक आंसर लिखना है, तो हम सही से सोच नहीं पाते, तो बाद में अगर सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था उस हिसाब से हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर किया कि नहीं किया, फिर जितने वर्ड्स लिमिट में लिखने हैं वो लिखा कि नहीं, पॉइंट वाइज जो भी है, एंड जो पॉइंट्स लिखे वो रिलेवेंट लिखा है। कई बार हम हड़बड़ी में बिना सोचे भी इररिलेवेंट पॉइंट्स भी लिखते थे, तो वो भी नहीं करना। तो ऐसे मतलब बहुत सारे पैरामीटर से करें, एंड फिर एग्जांपल्स लिखा है कि नहीं लिखा है, इलस्ट्रेशन लिखा है कि नहीं लिखा, हम लिख सकते थे कि नहीं, फिर अगर डायग्राम बनाने की अपॉर्चुनिटी थी तो अगर डायग्राम बनाए तो वो बनाए, मतलब वैसे देख सकते हो। Okay, Ravi, I think we are coming to almost the end of the whole discussion, but there are a few important points we should touch upon.
I get repeated requests from students about test series enrollment and all, but okay, I think your video is paused, Ravi. हाँ, तो मैं ये Yeah, पूछ रहा था yeah. कि is test series all like very essential, because I get a lot of requests and I have to keep some requests at bay. मेरे पास time limited है, and apart from me there are some people who some institutes which are running this, but maybe because of the quality of evaluation या फिर limited seats there also, not all people get access to test series. Do you think test series are very essential? If someone does not have access to test series, how do they deal with it? It depends actually. If one is confident about his answers, I don't think there's a very much need. One can, assess their answers on their own. Like I used to do it this time. I didn't join any test series, and there are some answers on your website also, and you have given a synopsis of it. So I write the answers, and I used to compare it with your synopsis. That broadly I'm covering all the topics that you have mentioned. So that ways one can do it if one is not confident. So the important thing is to write answers confidently. So and one is not confident कि वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वो अपने से evaluate भी नहीं कर पाते. हो सकता है, मैं भी नहीं कर पाता था initially. तो one can go for टेस्ट सीरीज एंड इजीली मिल जाता है तो ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना चाहिए बहुत ज्यादा. फिर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन में डालेंगे तो भी मतलब मेरे हिसाब से हो जाएगा. तो अगर मेरे हिसाब से ये है कि फर्स्ट इज सेल्फ इवैल्यूएशन. टेस्ट ज्वाइन करने से पहले भी अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट ही करना चाहिए. एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए तब दूसरे से इवैल्यूएट करके भी फायदा होगा कि वो वैल्यू एडिशन करवा दे. और उसके अलावा पीयर इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं. तो बहुत अपॉर्चुनिटी टेस्ट मतलब प्रोफेशनल ही किसी से चेक करवाने के लिए. लेकिन हाँ, वो भी एक ऑप्शन है. अच्छा, अगर आपको खुद के आंसर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि अब मैं इस पॉइंट से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो हाँ, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरत हो जाती कभी कभी. तो उसके लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट होता है. So to be clear, students, 2019 में तो I did not have any test series. 2018 में Ravi was part of the same test series in which Anuraj was a part of, in which Nivedita were a part of, and yeah, it was a very motivated group. So okay, I think that clears the air about test series. इंटरव्यू स्टेज में कुछ साइकोलॉजी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे क्या, या आपने सुना है कि पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और मतलब मेरे से भी हर बार पूछे गए ही हैं मतलब क्वेश्चंस. इस बार थोड़ा सा कम रहा था. इस बार मोर फोकस हो गया था मेरे जॉब पे और थोड़े से जनरल सवाल जो मतलब जनरली पूछते भी हैं. तो इस बार तो आई थिंक बहुत ही मतलब 3 सवाल थे. आई थिंक इफ how is personality determined, is it based on heredity or environment, and can it be changed. So ये एक सवाल था. फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग ड्यूरिंग कोविड ऑन चिल्ड्रन. मतलब ब्रॉडली साइकोलॉजिकली ही पूछ रहे थे, तो मैंने अटेंशन डेफिसिट का एक एग्जांपल दिया था. एंड पहले में से काफ़ी पूछे गए थे. पिछले बार बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया था. फिर इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन आर्म फोर्सेस पूछा गया था. उससे पहले रोड रेस पे पूछा गया था. फिर आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पूछा गया था. फिर उसके अलावा डिमेंशिया पे पूछा गया था. फिर जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स पे भी पूछा गया था. तो काफ़ी मतलब मेरा बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस, अब नॉर्मल साइकोलॉजी मतलब पहले 2 इंटरव्यू में तो काफ़ी क्वेश्चंस थे. ऐसा भी होता था 2-2 3-3 मेंबर्स से साइकोलॉजी पूछ गए. मेंटल हेल्थ एक्ट पे भी पूछा गया था. एक मेंबर ने तो पूरा ही मेंटल हेल्थ एक्ट पूछ लिया था पिछली बार. तो मेरा काफ़ी रहा. इस बार नहीं रहा था साइकोलॉजी से ज़्यादा. बट हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं. इनफैक्ट ये होता है, ऐसा बोलते भी हैं कि बहुत कम लोग आजकल साइकोलॉजी से आते हैं. साइकोलॉजी बीइंग एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबको थोड़ा सा ऑफ शूट नॉलेज होता ही है साइकोलॉजी का, तो वो पूछ भी लेते हैं. तो आई थिंक जिसका भी ऑप्शन है साइकोलॉजी, उसको तो मैं बोलूंगा ही जब इंटरव्यू में जाते हैं तो अच्छे से ऑप्शन प्रिपेयर करके जाए. एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी आपको छक्के मारने के भी. तो या एग्जैक्टली, ये आपका स्ट्रेंथ है
यू आर राइट, मतलब आपने 3 इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब and you what you are saying is in every interview you have been asked psychology questions. इसके अलावा मैंने जिससे भी बात की है, जो भी साइकोलॉजी से इंटरव्यू के, सबको पूछा गया है, मेरे को भी पूछा गया था लीडरशिप स्टाइल से, सो डेफिनेटली ये इंटरव्यू तक काम आता है. ओके रवि, एक फाइनल क्वेश्चन था हमारे यूट्यूब कमेंट में, एक आया था, आजकल बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, एंड नॉट अ लॉट ऑफ देम, बट एक दो ऐसे स्पेशली पेपर 2 में, या फिर जैसे कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट इन जनरल एक बहुत जेनेरिक, मतलब पिछले साल जैसे था कल्चर का सवाल था, इस बार था इफ लर्निंग कम्स, मतलब स्टडी कम्स एज अ हैबिट विद देन व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक अ टाइम टेबल और समथिंग. या मतलब मैं तो ये कहूँगा ये सब बहुत ही अपॉर्चुनिटी अपने आप को ऐसे टाइप एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए. तो अब क्वेश्चन आया तो लिखना ही पड़ेगा, तो जो भी अपने नॉलेज है लिखना चाहिए जो कि रेलेवेंट है. उसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी के टर्म्स भी करने चाहिए, जैसे यही सवाल जो मैं बता रहा था कि लर्निंग इफ स्टडिंग कम्स नेचुरली देन व्हाट देयर इज अ नीड टू. तो फिर मैंने बताया कि कई बार नेचुरली नहीं आता और वो मोटिवेशन सस्टेन नहीं होता है, तो उसके लिए टाइम टेबल चाहिए होता है, अपने आप को मोटिवेट करना होता है, फिर डिफरेंस लाने होते हैं स्टडी स्टाइल में, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है. तो यही जो भी साइकोलॉजी में हमने पढ़ रखा है उसी को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है. और उसमें ऐसा होता है कि वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, तो सब लोग बहुत अच्छा आंसर भी नहीं कर पाएंगे और बहुत ही कम ही लोग होंगे जो साइकोलॉजी के टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस भी कर पाएंगे. तो बस चैलेंज यही है कि 4-5 ही टर्म्स अगर यूज कर दे, उसको अच्छे से उसको कंटेक्स्ट में बैठा दे, तो मेरे हिसाब से मतलब डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे एटलीस्ट वो क्वेश्चन. yeah, so if you are a good student, if you can write good answers, और अगर आप केपेबल हैं तो आप प्रे कीजिए कि मोर एंड मोर ऐसे क्वेश्चंस आए ताकि आपके आंसर्स डिफरेंशिएट हो जाएं दूसरों से. All right, Ravi, it was a wonderful, I think very knowledgeable और बहुत crisp आपके answers थे, very specific थे, which sometimes I really feel कि there is dearth of such specific knowledge on online platform, क्योंकि वो बहुत generic हो जाता है. So thank you so much for this. Any other words of motivation you have for someone who is a veteran aspirant like you, maybe who has had like some mains experience, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होगा, बहुत टाइम से ड्रैग कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, so how do they keep themselves motivated, and उनको ऐसा लग रहा हो कि ऑप्शनल चेंज कर लें, जैसे आपने बताया जसमीत सर ने ऑप्शनल चेंज करके पंजाबी लिटरेचर दे दिया, so how do they keep themselves motivated with the UPSC journey and with the optional? Particularly psychology में a veteran person appears for interview, तो most likely he would have been scoring 260 to 290 ही, मतलब उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वही रेंज में ब्रॉडली होगा. किसी का जीएस अच्छा है तो 260 जीएस जिनका होता है वो 290 की तरफ होगा, फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है. तो मैं मानता हूँ डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे मैं भी स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है, मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे नॉलेज की कमी है. तो इन रेट्रोस्पेक्ट आई विल से कि मतलब आंसर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है. क्वालिटी इन द सेंस की आई थिंक 290 280 अगर कोई लेकर आ रहा है, 270 फॉर दैट मैटर, तो वो इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना, तो अगर अच्छे से पढ़ रखा है एंड ही इज स्ट्रगलिंग, तो मेरे हिसाब से द फोकस शुड शिफ्ट टू इम्प्रोवाइजिंग the answers, writing good examples and illustrations. मतलब मैंने इस बार स्पेसिफिकली यही किया था कि एनसीईआरटी खोल के एग्जांपल्स ढूंढता था, बस पूरे चैप्टर ही नहीं पढ़ना, बस एग्जांपल्स निकालने और वो एग्जांपल्स मैं लिख देता था अपने नोट्स पे. सिसरेली मैंने उठाया, उनके स्टाइल देखा, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉग्निटिव डिप्रेशन का कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स लिखना है, तो उसमें मैंने उनके वर्ड्स होते थे कैची लिखा हुआ है कि समवन विद डिप्रेशन, तो वो उनके कॉग्निशन ऐसे हो जाते हैं कि एम आई टू ब्लेम और दिस इज माय फॉल्ट. तो ऐसे ऐसे मैंने ना उठा लिए थे और मुझे आंसर्स में लिखना था. तो मतलब मैं यही कोशिश कर रहा था एनरिच करना आंसर्स को, जो मैं पिछली बार लिख रहा हूँ उससे तो मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे वो तो करना ही है क्योंकि 290 आ रहे हैं, तो मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बस है कुछ बेटर करना है, तो उस पर एनरिच कर. बाकी मतलब यही एग्जाम है तो मोटिवेशन तो मतलब खुद से बनाना होना चाहिए. एग्जाम ही ऐसा है कि जो भी
इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहेगा वही अच्छा कर पाएगा वो। और लंबा जर्नी चल जाता है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जाता नहीं, जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट भी शुरू हो जाता है हमारा। Right. तो मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहे, अपने में कॉन्फिडेंट फील करे और दोस्तों से अपने भी जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करे। वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, वो हेल्प करता है। मतलब मेरा लास्ट अटेम्प्ट तो मेरे जो भी यूपीएससी या नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स है उन्होंने पुश करके दिलवाया था। अगर नहीं तो आई वाज थोड़ा सा लूज आउट कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था, लॉस्ट तो ज़्यादा ही फ्री माइंड से इस बार दिया था। एंड हाँ, उनके मोटिवेशन एंड उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट के बिना नहीं होता। तो आई बिलीव कि मतलब किसी को भी इतने लेट अगर 3-4 अटेम्प्ट लग रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेंड्स एंड फैमिली से सपोर्ट की जरूरत होती, तो उनके तरफ भी रीच आउट करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने आपको मोटिवेट किया एंड दे पुश्ड यू टू गिव दिस अटेम्प्ट सो दैट यू नो our country gets an officer like you. And अभी आप घर पे हैं, but you are going to attend the academy like next week. All the very best for your journey, and thank you so much for spending almost Thank an hour. you आपको भी for hosting this and keeping the spark of psychology going on. So thanks a Yeah. lot from me and from my result. The credit goes to you as well. And मतलब words नहीं है मेरे लिए आपको thank करने के, क्योंकि the different thought process which I needed came through you and through Anuraj also, who got the same change of thought आपकी वजह से। तो I hope you keep guiding students in the future also. Although you are not in the field, फिर भी it takes time and energy to contribute. Yeah, I do it for the students at large. I've been there, so I know the pain. Anyway, Ravi, thank you so much, and we hope we connect soon. Thank you so much. Okay, bye. Take care. Bye.